फाउंडेशन के माध्यम से 45 दिन का पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप ट्रेनिंग का ये कोर्स चलाया जा रहा था ग्राम लालसे बीघा में, जो आज संपन्न हुआ और सभी बच्चों को स्पीच दिला करके सर्टिफिकेट वितरण किया गया। यही समारोह था। इसमें बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए सिखाया गया, पब्लिक स्पीकिंग सिखाया गया, जो कॉन्फिडेंटली आज बच्चे बोल रहे हैं। आप लोग सब लोग भी देखें तो यह हमारे संस्था के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी। Everyone, my name is Mayakraj. Today I am going to speak about one of the greatest spiritual leader in the world, Gautam Buddha. Gautam Buddha was Prince Siddhartha in Lumbini around 2005 years ago. He lived a luxury life, but one day he saw the pain, sickness, death in the world. This changed his life. He left his palace and family in the search of truth and peace. After many years of deep thinking and meditation, he got enlightenment under Bodhi tree in Bodhgaya. From that one day he became Gautam Buddha, the one who is awakened. Buddha taught us the message of non-violence, love, kindness, peace, and many other things. He said that real happiness not comes from money, but from a pure heart and a peaceful mind. His Four Noble Truths and Eightfold Path guided us to live a better life. So you have to also follow the path of truth and compassion. Gautam Buddha is not just a teacher of one religion, he is a teacher of humanity. His teachings are followed all over the world. I have also a quote of Gautam Buddha: Peace comes from within, do not seek it without it. शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत तलाशो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। My name is Jansiga Kumari. Namo Buddhaya, Jai Bhim. Good afternoon to all respected teacher and my dear friend. Today I am going to speak about a great woman, Savitribai Phule, the first female teacher of India. Savitribai Phule was born on 3rd January 1831 in Maharashtra. In a time when girls were not allowed to go to a school, with the support her knowledge changed the future of many women in India. We realize education in the only way to fight against justice. Savitribai Phule is known as the mother of India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Namo Buddhaya, Jai Sanvidhan. Respected sir, good afternoon and good afternoon to all of you. Now I am going to speak about me. My great woman Savitribai Phule, the first female teacher of India. Savitribai Phule was born on 3rd January 1831 in Maharashtra in a time when girls were not allowed to go to school. Her husband Jyotibai Phule, she opened the first school for girls. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्यार से भी बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक दलित परिवार के कारण उन्हें सामाजिक भेदभावों का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब ने अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन रखा। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उचित शिक्षा प्राप्त की। वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी। उन्हें स्कूल में अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था, अलग घड़े में पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता था। बाबा साहेब भारत के संविधान निर्माता है। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बना संविधान आज भी भारत को समानता, एकता और न्याय का राजमार्ग दिखाता है। बाबा साहेब के संविधान में हर नागरिकों को समानता अधिकार मिला, चाहे वह किसी जाति, धर्म या लिंग का हो। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस शुभ कार्यक्रम में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है, उनका जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश महू में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब ने अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि हासिल की। उन्हें स्कूल में अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पानी पीने के लिए उन्हें अलग घड़े का इस्तेमाल करना पड़ता था। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माता। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
उनके नेतृत्व में बना संविधान आज भी भारत को एकता, समानता और न्याय का मार्ग दिखाता है। उन्होंने संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार दिया, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। उनके इस योगदान के कारण उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब ने दलितों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही प्रगति का रास्ता है। माननीय मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय महोदया, सम्माननीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों एवं उपस्थित महानुभावों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं आपके समक्ष भारत और विश्व के महानतम महापुरुषों में से एक महात्मा बुद्ध जी के विषय में अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज मैं यहाँ महात्मा बुद्ध जी के विषय में कुछ शब्द कहने के लिए खड़ी हुई हूँ, जिन्हें पूरी दुनिया में शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। बचपन से ही वो विलासिता में पले बड़े थे, लेकिन जब उन्होंने संसार के दुखों को, जैसे रोग, मृत्यु और बुढ़ापा को देखा तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना राजपाट, परिवार और ऐश्वर्य को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये रहा हमारे महात्मा बुद्ध के बारे में। लेकिन हम कुछ बौद्ध धर्म के बारे में कहना चाहते हैं। जैसा कि अभी योगेश्वर नंदन सर बोले थे, जब शुरू यहाँ पे पूजा हो रहा था कि यहाँ पे स्त्री और पुरुष सभी समान हैं, एक समान हैं। लेकिन क्या ये सच में हो रहा है? हमारे गुरु कहते हैं कि जब हम किसी के सामने एक उंगली दिखाते हैं तो बाकी की बची चार उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है, और ये हमें संकेत देती है कि हम खुद उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं जिस रास्ते पे चलने के लिए हम दूसरों को कह रहे हैं। हम जानते हैं कि सब लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं इस रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन वास्तव में हो नहीं रहा है। आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जो हम लोग कर रहे हैं वो सब लोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी वही हो रहा है जिसको हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।